All right, guys. Let's start paper 5, planning, analysis and evaluation. We are solving October, November 2020, variance 52. Okay, let's see what we have in the paper. Um, Calcium hydroxide is slightly soluble in water. Okay. Uh, Aqueous calcium hydroxide is also known as lime water. That's normal information which we have done in O levels as well as in A1. A student measures the concentration of a saturated aqueous calcium hydroxide using the following method. Okay. Phew, okay. Add a spatula measure of solid calcium hydroxide to 250 cm cube of distilled water. In a conical flask, stopper the flask and shake the flask thoroughly. Why? Why we need to stopper the flask? Why are we stopping the flask? आप जानते हैं कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस होती है और आप जानते हैं कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका एल्कली होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्कली में एब्जॉर्ब हो जाता है जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को चेंज कर देगा तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स पर भी इम्पैक्ट आएगा तो टू prevent that reaction between calcium hydroxide and carbon dioxide, we need to stopper the flask. Okay. So हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि carbon dioxide is an acidic gas can react with calcium hydroxide. So to prevent this reaction, we need to stopper the flask. Okay. Leave the flask stoppered for 24 hours. Okay. उसके बाद वो कह रहे हैं filter the aqueous calcium hydroxide into a clean dry beaker. तो जाहिर सी बात है जब आप फिल्टर करेंगे क्लीन ड्राई बीकर के अंदर तो आपके पास फिल्ट्रेट कलेक्ट होगा. ओके. Transfer 25.0 cm cube of aqueous calcium hydroxide to a clean conical flask. बहुत ही एक्यूरेट वॉल्यूम है ये क्योंकि 25.00 cm क्यूब कह रहे हैं. इसका मतलब इसको हमने मेजर किया होगा ब्यूरिट से. और हम पिपेट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एक फिक्स वॉल्यूम को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पिपेट. तो हम ये दोनों यूज कर सकते हैं. ठीक है. Now the next is carry out a titration with 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid. तो hydrochloric acid की concentration is given. Next is record the volume of hydrochloric acid required to react with aqueous calcium hydroxide. Okay. Suggest why it is necessary for the flask to remain stoppered in step 2. ये मैंने आपसे कहा था. ये रीजन है इसकी. इस रीजन को उठा के लिख देते हैं. यहाँ लिखते हैं because air contain carbon dioxide so it can react with alkaline solution of
calcium hydroxide. Now the next is suggest why the student leaves the solution for 24 hours in step 2. उसकी वजह यह है कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो और फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो। ठीक है, टू मेक श्योर solution is saturated so that calcium hydroxide further dissolve हो, so that calcium hydroxide cannot dissolve further. The student finds that the mean titer is 10.65 centimeter cube. Okay, the equation for the reaction is shown. इस equation के अंदर पता चल रहा है ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। फिर वो कह रहे हैं calculate the number of moles of calcium hydroxide that reacted. So we know the concentration and volume of HCl, right? This is the volume of HCl. ठीक है जी, ये वॉल्यूम ऑफ HCl है आपका और ये कंसंट्रेशन ऑफ HCl है आपकी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे। तो वॉल्यूम मेरे पास कितना है 10.65, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.1, 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 1.065 into 10 to the power minus 3 moles. ओके, हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रेशो इज 1:2, ये 1 मोल, ये 2 मोल। तो अगर आपके पास 1.065 into 10 to the power minus 3 मोल्स हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। और मोल्स हैं moles of calcium hydroxide is going to be 5.325 into 10 to the power minus 4 moles in 25.0 cm cube, क्योंकि हमने पिपेट से मेजर किया था ना 25.0 cm cube, राइट? उप्स, ठीक है, ये आपके मोल्स आ गए। इन मोल्स को उठा के यहाँ लिख दीजिए 5.325 into 10 to the power minus 4 mole. ठीक है, now the next part is calculate the concentration of aqueous calcium hydroxide in gram per dm. okay, अच्छा, ये जो मोल्स आपने निकाले हैं तो 25 cm क्यूब में है और आपने सोल्यूशन कंसंट्रेशन निकालनी है 1000 cm क्यूब के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो 25.0 cm क्यूब contain how much moles? 5.325 into 10 to the power minus 4 moles of calcium hydroxide. तो अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कंपेयर करूंगा तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास हो जाएगी 0.0213 मोलर। मोलर का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। ओके, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर डीएम क्यूब होता है ये। ठीक है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। इसका मतलब मुझे एमआर चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो मैं यहां से एमआर लेता हूं, एमआर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम खुद से कैलकुलेट करेंगे पीरियोडिक टेबल यूज करके।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 74.1, ओके 74.1। सो मुझे अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो फॉर्मूला है ग्राम पर डीएम क्यूब इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यूब इनटू एमआर। मुझे मोल पर डीएम क्यूब मालूम है विच इज 0.0213, मुझे एमआर मालूम है विच इज 74.1। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1.578 ग्राम पर डीएम क्यूब। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ लिख देते हैं 1.578 ग्राम per dm cube. Okay, I hope it makes sense to you. ठीक है जनाब। Now the next part of the question is all right guys, so हमने यहाँ पर concentration determine कर ली, concentration को यहाँ रखा। Now let's move on to the next part of the question. In a chemistry data book, the student found the value of the concentration of a saturated solution of calcium hydroxide at 293 Kelvin to be higher than the value calculated in B2. Okay. फिर वो कह रहे हैं give 2 reasons why the data book value is higher than the value calculated in B2. ओके सबसे पहली तो बात ये कि हमने ये पूरा का पूरा काम जो था वो जाहिर सी बात है रूम टेम्परेचर के ऊपर किया था, राइट। ये कंसंट्रेशन जो हमने निकाली थी ये रूम टेम्परेचर के ऊपर थी, लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर एग्जामिनर दे रहे हैं वो 293 केल्विन है विच इज नॉट द रूम टेम्परेचर, दिस इज बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी बी पार्ट 2 में वो बेसिकली ग्राम पर डीएम क्यूब में थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सो आप जानते हैं कि सॉलिबिलिटी चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और क्योंकि टेम्परेचर यहाँ चेंज हुआ है इसलिए सॉलिबिलिटी भी चेंज हो रही है। ओके, हम यहाँ लिखेंगे solubility changes when temperature changes. ओके, और कंसंट्रेशन हायर थी, इसका मतलब सोल्यूशन जो है वो 24 आवर्स के बाद भी सैचुरेटेड नहीं हुआ था, ठीक है। दिस मीन्स temperature is different than room temperature. ये तो एक रीजन हो गई। दूसरी रीजन ऑल्सो solution was not saturated, solution might not be saturated even after 24 hours. Okay, even after 24 hours. A second student carried out the experiment but did not filter their solution correctly in step 3. Okay. Leaving some undissolved calcium hydroxide suspended in the solution. तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने उसको फिल्टर नहीं किया, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ अनडिसॉल्व्ड सॉलिड उसके अंदर मौजूद है, एक्स्ट्रा सॉलिड उसके अंदर मौजूद है सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे सम एक्स्ट्रा सॉलिड is present in the solution. अब अगर एक्स्ट्रा सॉलिड है सॉल्यूशन के अंदर तो जाहिर सी बात है you need more amount of HCl for the neutralization, all right?
इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू होगी, टाइटर वैल्यू होगी HCl की, वो ज्यादा हो जाएगी आपके पास। पहले आई थी 10 पॉइंट, किधर गया, या पहले आई थी, उप्स, वेट, पहले आई थी 10.65, अब वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे solution mixture contain extra amount of solid calcium hydroxide. So we need more volume of HCl to neutralize it. To neutralize this extra calcium hydroxide, hence titer value increases. Okay. Describe how to prepare exactly 250 cm cube of 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid from 1 mole per dm cube HCl. Include the names and capacities of any suitable apparatus. तो basically dilution कर रहे हो, अब 1 मोल पर डीएम क्यूब से 0.1 मोल पर डीएम क्यूब बना रहे हो, तो आप डाइल्यूशन कर रहे हो। यानी आप कर क्या रहे हैं, आप कर ये रहे हैं, हम कुछ इस तरह से बता देते हैं आपको कि आप कर ये रहे हैं कि आपके पास एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क में आपके पास 1 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन है। सही है, ओके। और आप उससे क्या बना रहे हो, आप बना रहे हैं 0.1 मोलर 250 cm क्यूब ऑफ 0.10 मोलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हैं। सो इन दैट केस मोल्स तो सेम रहेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगी। सही, तो हम लिख देते हैं इस बात को। नोट करने की बात यह है कि 1 मोल पर डीएम क्यूब से 0.1 मोल पर डीएम क्यूब जा रहे हैं, इसका मतलब आप 10 टाइम्स डाइल्यूशन कर रहे हो, राइट। और टाइट्रेशन के लिए ओके, तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं कि मुझे 10 टाइम्स डाइल्यूशन करनी है, तो अगर 10 टाइम्स डाइल्यूशन करनी है तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो भी 10 टाइम्स लेसर होगा। ठीक है, ओके। सो मैं यहां पर कुछ इस तरह से लिख देता हूं कि यूज a burette to measure 25.0 cm3 and transfer this volume in 250 cm3
volumetric flask add distilled water into volumetric flask to make up till 250 cm3. Stopper the flask. Stopper the flask and shake it thoroughly. To mix well. Okay, just hold on a second. Okay, ये तो पता है ना आपको कि ये मैंने वैल्यू कहाँ से डिटरमिन की? ये वैल्यू मैंने डिटरमिन की क्योंकि मैंने 10 टाइम्स डाइल्यूशन किए, तो इसका 10 टाइम्स लेसर वॉल्यूम होगा तो वो 25 cm³ आएगा। ठीक है, ये याद रखना। ओके, ये हो जाएगा 1 divided by 0.1 into 10। ओके, सही है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लिखना पड़ेगा डाइल्यूशन बल्कि नहीं 10 टाइम्स डाइल्यूशन, बल्कि इस तरह से लिखें फ्रॉम 1 मोलर HCl to 0.1 molar HCl shows that it is 10 times diluting the solution. Hence, (25.0 cm³ is required for titration. ठीक है, okay. That's the end of question number 1. Let's move on to the next part of the question. Okay, next part of the question seems like सुना लग रहा है, देखते हैं। Sodium thiosulfate reacts with excess dilute hydrochloric acid according to the following equation. Yes, you have done this in O-level chemistry, rate of reaction. ये बेसिकली हमने क्रॉस एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था आपको रेट ऑफ रिएक्शन ओ लेवल्स के अंदर, और आपने ए लेवल्स के प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। The reaction produces sulfur dioxide which is corrosive and toxic by inhalation. Okay, अगर inhalation toxic है inhalation से, तो इसका मतलब experiment needs to be performed in fume covered. तो आप यहाँ बताएंगे कि फ्यूम कवर्ड होनी चाहिए। ओके, अगर करोसिव है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो जाहिर सी बात है करोसिव भी है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे the effect of temperature on the rate of this reaction can be investigated by disappearing cross experiment as follows. That's what I've told you. वो आपसे rate of reaction investigate करवाना चाहते हैं effect of temperature के थ्रू, और उसके लिए उन्होंने क्रॉस एक्सपेरिमेंट यूज किया है। और क्रॉस एक्सपेरिमेंट में समझा देता हूँ क्या होता है, बल्कि चलें एक्सपेरिमेंट्स हमें स्टेप्स की फॉर्म में दिए हुए, तो ये बताए हुए उन्होंने। measure 10 cm³ of 0.1 mole per dm³ sodium thiosulfate and transfer into a boiling tube. Okay, तो मुझे इसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है, मुझे इसका वॉल्यूम भी गिवन है।
Next is into a second volume tube transfer 10 cm cube of 0.5 mole per dm cube HCl. इसका मतलब मुझे इस HCl की concentration और volume भी given है. Heat both the tubes in the same water bath में heat करना है ताकि temperature जो है वो maintain रहे. Place a conical flask on the piece of paper which is drawn a large X, on which is drawn a large X. ठीक है. When the solutions reach the required temperature, remove them from the water bath. Pour the content of both tubes into the conical flask and immediately start a timer. Timer के लिए you need a stopwatch. ठीक है. I hope you remember it now. कि हम एक पेपर लेते थे, पेपर पे एक बड़ा सा क्रॉस लगाते थे, उस पेपर यानी क्रॉस के ऊपर हम कॉनिकल फ्लास्क रख दिया करते थे. एक वाटर बाथ लिया हुआ है, उसके अंदर हमने दोनों ट्यूब्स को जो है बॉईल किया हुआ है, आई मीन हीट किया हुआ है टू सर्टेन टेम्परेचर, राइट. यानी दोनों को समझ लें 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है. फिर दोनों को उठाकर हम मिक्स करेंगे और इस कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे. दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा. जब रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है सल्फर बनना शुरू होगा. सल्फर के प्रेसिपिटेट जब बनेंगे तो ये प्रेसिपिटेट जो है ये इस क्रॉस को डिसिपेयर होने में हेल्प करेंगे. जैसे ये क्रॉस डिसिपेयर होगा आप स्टॉप वॉच बंद कर लीजिए, टाइम नोट डाउन कर लीजिए. आगे चलते हैं. आगे जाने से पहले एक चीज और देखो, ये है ना रिमूव देम फ्रॉम द वाटर बाथ. सो दिस माइट बी द सोर्स ऑफ एरर बिकॉज हो सकता है हमने पहले वाटर बाथ से रिमूव कर लिया हो. सही है, कह सकता हूँ ना कि मैंने दोनों ट्यूब्स को जो है वो वाटर बाथ से पहले जल्दी निकाल लिया हो. तो take out both tubes too early. तो ये बेसिकली सोर्स ऑफ एरर हो सकता है. स्टॉप वॉच यूज किए तो ये भी सोर्स ऑफ एरर में जा सकता है. हो सकता है हमने टाइम जो है वो या तो अर्ली स्टार्ट किया हो या लेट मेजर किया हो. टाइम मेजर, बल्कि टाइम मेजर को भी जोड़े. टाइमर स्टार्ट अर्ली और लेट. स्टार्ट अर्ली और लेट. सही है, ये सोर्स ऑफ एरर है ये भी. ठीक है, दीज आर द सोर्स ऑफ एरर. The X on the paper should be viewed from above the flask as shown in the diagram. यानी आपने यहां से देखना है, ठीक है ना, इस क्रॉस के अपीयर होने को. When the X can no longer be seen, यानी X जो है वो ओपैक हो जाएगा. इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं सॉल्यूशन को ओपैक हो जाना. सॉल्यूशन इज ओपैक. ठीक है. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सल्फर, स्टॉप द टाइमर. तो टाइमर या तो हमने जल्दी स्टार्ट कर लिया था या देर से स्टार्ट किया था. दोनों टाइमर के इश्यूज हो सकते हैं, टाइमर का सोर्स ऑफ एरर हो सकता है. Repeat the experiment using the same volume of concentration of solution at different temperature. Okay. वो क्यों कह रहे हैं मुझसे कि एक्सपेरिमेंट रिपीट करो ताकि मैं एक्यूरेसी की तरफ चले जाऊं, टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स. ठीक है, ओके. डिफरेंट टेम्परेचर कह रहा है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, व्हाट वी चेंज. तो हम बेसिकली टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं मुसलसल.
ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 5 एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं मेक श्योर करूंगा कि पांचों एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो सेम रहे। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन नीड्स टू बी कंट्रोल वेरिएबल। ओके, now in the next part, state one precaution that should be taken to reduce hazards caused by one of the products of this reaction। तो भाई आपको बताया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड कोरोसिव है, ठीक है ना, इनहेलेशन का इशू होता है। तो मैंने कहा था कि फ्यूम कवर्ड यूज कर लीजिए, और कोरोसिव है तो केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यूज फ्यूम कवर्ड to perform the experiment as sulfur dioxide is toxic, gas is toxic। और दूसरा है use chemical resistant gloves because sulfur dioxide is corrosive। okay, उसके बाद वो आपसे sorry, suggest appropriate equipments for measuring the required volumes of sodium thiosulfate and HCl stated in the method। तो भाई सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम कितना मेजर कर रहा हूं मैं, 10 cm3, और ये एक एक्यूरेट वॉल्यूम है, तो जाहिर सी बात है प्यूरेट से मेजर करूंगा मैं। यहाँ लिख भी देते हैं प्यूरेट। सिमिलरली ये एक एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं है, राइट। तो जब एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं होता तो आप मेजरिंग सिलेंडर यूज कर सकते हो। ये जस्ट राइट 10 cm3, 10.00 नहीं लिखा। तो सोडियम थायोसल्फेट के लिए हम ब्यूरेट यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां एक एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट की वॉल्यूम की जरूरत है। HCl में एक्यूरेट नहीं है तो हम मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लेते हैं। All right, now in the next part, let's see what we have. The student can recorded their data in the table। okay, complete column E in the table using your values to 3 significant figures। so guys 3 significant figures की values हैं। तो मुझे बेसिकली यहाँ क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है। मैं इस केल्विन के टेम्परेचर को 1 से डिवाइड करूंगा और यहाँ आंसर लिखता चला जाऊंगा। ओके, चलें देखते हैं। हो जाएगा 1333 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। तो 1 divided by 333 is going to be 3.00 into 10 to the power minus 3। तो हम इसको लिख लेते हैं 0.00300, राइट। फिर आपके पास 1 divided by 323 is going to be 3.095। तो ये हो जाएगा 0.00310। फिर है हमारे पास 1 divided by 314 is going to be 3.18 into 10 to the power minus 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.00318। फिर है आपके पास 1 divided by 309, so it's going to be 3.236। 236 कह रहे तो राउंड ऑफ होगा, तो ये हो जाएगा 0.00324, ठीक है। 3236 है तो 4 हो जाएगा। ऑलराइट, 1 divided by 300, so it's going to be 3.333। तो
तो ये हो जाएगा 0.00333। ठीक है जनाब। फिर है आपके पास 1/294 is going to be 3.401। तो ये हो जाएगा 0.00340 है। ठीक है 340। तो ये हमारे पास रीडिंग्स आ गई 1/t की। ओके लेट्स सी व्हाट वी हैव। यूजुअली तो इसके बाद ग्राफ ही होता है एज यूजुअल। वो कह रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी EA ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन शोन। ठीक है ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्रीनियस इक्वेशन भी कहते हैं हम इसको। इसमें R की वैल्यू है 8.31। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 2.303 log 1/t ऑन द y एक्सिस, जो कि आपका ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एंड 1/t ऑन द x एक्सिस, जो कि बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है और टेम्परेचर को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही कहा था भी कुछ थोड़ी देर पहले। ये देखिए ये लिखा हुआ, क्योंकि हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं इसलिए वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑलराइट तो ग्राफ मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ मैंने टाइम की वजह से ये ग्राफ प्लॉट करके दे दिया आपको, बट आपने ये ग्राफ प्रॉपर प्लॉट करना है, बहुत समझदारी से प्लॉट करना है। बहुत जरूरी है कि आप ये सारी चीजें प्लॉट करके देखें सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि स्केल कैसे चूज करेंगे, रीड कैसे करेंगे, क्रॉस लगाना है, डॉट लगाना है। याद रखिएगा क्रॉस लगाना होता है, डॉट पेपर स्कैन होते हुए नजर नहीं आता तो मार्क्स नहीं मिलते बच्चों को उसमें। तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से इस ग्राफ को प्लॉट करें। ठीक है और ग्राफ के प्लॉट करने की प्रैक्टिस बहुत सॉलिड होनी चाहिए। वो कह रहे हैं सर्किल ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राफ यू कंसीडर टू बी मोस्ट एनॉमलस। मोस्ट एनॉमलस तो मुझे एक ही नजर आया जो कि इन तमाम पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर था, वो ये था। इसको मैंने क्रॉस कर दिया। इसको क्रॉस करने के बाद वो कह रहे हैं कि सजेस्ट 2 पॉसिबल एरर्स इन हाउ द प्रोसीजर वाज कैरिड आउट व्हिच कुड हैव कॉज्ड दिस एनोमलस पॉइंट। तो अच्छा जी देखो ये है 1/t राइट, और ये आ रहा है आपके पास क्रॉस। इस क्रॉस को होना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये आया है कम। तो 1/t जो है वो कम है देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट यहाँ कर रहे थे, आया यहाँ है। इसका मतलब 1/t इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। व्हाई इट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड? क्योंकि टेम्परेचर कम, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है 1/t कम हो जाएगा। ओके आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो मेरा पहला है 1/t is lower than expected. Okay. Why? Because temperature must be higher. So अगर temperature higher होगा, so 1/t must be lower. Hence proved कि भाई ये lower value पे आके adjust हुआ है। ठीक है एक और भी है यहाँ पर, और क्या है? ओके 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 log 1/t है ये। अच्छा चलो देखते हैं log 1/t। जरा देखिए log 1/t जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट मोर नेगेटिव हो रहा है। ये मोर नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि t ज्यादा हो रहा होगा। ये देखिए टाइम
टी फॉर क्रॉस टू डिसअपियर ज्यादा हो रहा है, सही है ना। सो log 1/t becomes more negative because time t for cross to disappear increases, right? सही है। और उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर log 1/t मोर नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब t जो है वो ज्यादा हो रहा है। और t ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जो टाइमर था, जो स्टॉप वॉच, उसको लेट मैंने स्टॉप किया, उसको लेट बंद किया। यही सोर्स ऑफ एरर दिया था ना, कि हो सकता है मैं उसको थोड़ा लेट बंद करूं, ये लिखा हुआ। सही है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? दूसरे वाली की एक्सप्लेनेशन काफी होगी, हम लिख सकते हैं यहाँ पर। हम कैसे लिखेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम? log 1/t, ठीक है। log 1/t, ओहो, log 1/t is getting more negative in the chart, meaning time t for a cross to disappear increases in the chart. This is because we stop the timer too late. I hope it makes sense to you. ठीक है। उसके बाद है आपके पास use the graph to determine the gradient of the line of best fit. State the coordinates of both points you used in your calculation. These must be selected from your line of best fit. Gradient जो है वो 3 significant figures में देना है। So बेटा मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए हुए। एक मैंने मेंशन किया हुआ है कोऑर्डिनेट ये वाला, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ये वाला पॉइंट जिसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। ये दो आ रहे हैं आपके पास, तो हम इन दोनों को उठा के लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 है मेरे पास 0.00295 और 1.75। तो हम लिखेंगे 0.00295 कॉमा -1.75। और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है? 4.0 0.00335, ठीक है। और दूसरा होगा मेरे पास 0.00335 और ये हो जाएगा -4.00। ये मेरे। अब ग्रेडियंट तो आपको कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं हम। ग्रेडियंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? y2 minus y1 over x2 minus x1 यानी डेल्टा y over डेल्टा x। y एक्सेस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ये हो जाएगी -4.00 -1.75 over sorry 0.00335 -0.00295, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा -2.25 डिवाइडेड बाय 0.004, ठीक है। 0.00, let me check my calculation again.
डबल चेक करने दें। हाँ सही है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -5, 6, 2, 5। ठीक है। आप सब जानते हैं कि ये क्या है, आपके पास 1 और आपके पास ये क्या है, केल्विन। तो आपके पास यूनिट हो जाएगी केल्विन इनवर्स, राइट। केल्विन हो जाएगी यूनिट, तो हम इसको लिख लेते हैं -5, 6, 2, 5। In the next part, examiner हमसे कह रहे हैं use the gradient you have calculated and the equation to calculate EA in kilojoule for the reaction. Give your answer to two significant figures. Two significant figures में आंसर देना है, okay? और इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? इक्वेशन ये है हमारे पास, ठीक है। सो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। 2.303 log 1/t equals to -EA/r। और हमारे पास x एक्सेस पे क्या था, 1/t था, राइट। तो हम 1/t ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और खास बात ये है कि हम इस इक्वेशन को उठा लेते हैं और वहां लिख देते हैं। आई होप सो कि ये वहां पर फिक्स हो जाए। oops oops no, let me try again। आई थिंक सो कि नहीं होगा स्क्रीनशॉट, इतनी देर में तो मैं लिख ही लेता। चले एनी हाउ यहाँ आते हैं। चलिए यहाँ आ गया। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमसे कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पहली तो बात ये है कि ये जो आपके पास है ये आपका वाई एक्सेस है, ठीक है भाई, ऑलराइट। उसके बाद ये जो आपके पास है दिस वन, ये आपका ग्रेडियंट है, दैट इज m एंड दैट इज योर ग्रेडियंट, ओके। जबकि ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है आपका x एक्सेस, ठीक। तो अगर आप नोट करें इस ग्राफ में y इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, है ना। x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, बिकॉज नो y इंटरसेप्ट, राइट। नजर आ रहा है आपको, isn't it? सो अब मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, और मैं कैलकुलेट करने के लिए मैं कहूंगा ग्रेडियंट किसके इक्वल है, -EA/r। मुझे EA कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली मैं माइनस मैं -r को ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। माइनस एज इट इज r की वैल्यू है 8.31, ग्रेडियंट आपने कितना निकाला था 5625। तो यहाँ से EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएंगे प्लस। तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में आ गई, और ये है आपके पास 46,785.3 जूल्स मोल इनवर्स। और मुझे आंसर किस में देना है, किलो जूल्स में, तो मैं इसको
जाहिर सी बात है 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 46.7 है, तो मैं 46.78 किलो जूल्स हो गया। मुझसे कह रहे हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तो टू सिग्निफिकेंट में आंसर देने के लिए मैं कहूंगा प्लस 47, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 47। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स अ लेंथी क्वेश्चन, 14 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ओके, a student repeats the experiment at 60 degrees Celsius। ठीक है, but with different concentration of sodium thiosulfate. The new solution is named solution B. The time taken until X can no longer be seen is 11.52 second। अच्छा अच्छा जनाब, 60 डिग्री सेल्सियस जब था, तो चलते हैं वापस 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या था। जब आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस था तो आपके पास टाइम कितना था डिसिपेट होने के लिए क्रॉस को? 7.39 सेकेंड्स, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ at 60 degree Celsius time t, time t for cross to disappear, time t for cross to disappear was 7.39 seconds, right? तो अगर टाइम कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। लेसर टाइम हायर रेट। अब क्या है सिनेरियो? अब सिनेरियो ये है कि आपके पास टाइम कितना है? 11.52, टाइम ज्यादा, तो बिगर टाइम स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है ना वो कम होगी। सही है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, कम टाइम लगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था। अगर टाइम ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम है। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो कह रहे हैं स्टेट whether the concentration of solution B is more or less than 0.1, less than 0.1। सही है, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी आपको पूरी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? concentration of solution B is lower than 0.1 mole per dm cube। Why? Because at original concentration that is 0.1 molar, time recorded for X to disappear was 7.39 second। which is the
which is the shorter time का मतलब higher rate, ठीक है, shorter time than 11.52 second in the new experiment. Hence, reaction rate is slow. Okay, I hope it makes sense to you. Last part of the question is, it is more appropriate for the value in column C of the table on page 6 to be recorded to the nearest second. Suggest one reason for this. Here, value in column C. It is more appropriate for the values in column C of the table on page 6 to record to the nearest second. Table C, nearest second. Meaning, I think so कि इसकी logical reason यही बन सकती है कि we need to stop the timer only when we observe the cross to disappear. सही है? So हम लिखेंगे we need to stop the timer. We need to stop the timer only when we observe the cross disappear. Hence, reaction will take some time. ठीक है? That's the end of this paper. Thank you very much.